Assalamualaikum everyone. This is a recorded lecture on 4+1 architectural model or 4+1 view model. ठीक है. The learning outcomes of this lecture are we'll sort of explain why software architecture needs multiple views basically. ठीक है. It's a view model, 4+1 view model or 4+1 view architectural model. ठीक है. तो firstly, we will establish what a view is. What do we mean by an architectural view? Then we will discuss and explain why software architectures would need multiple views. Okay. Then we'll describe the 4+1 view model, which was proposed by Philip Curtin, Canadian software engineer. Okay. And then we'll differentiate and discuss the four main views described or proposed in this model. And then that one additional view जिसको इस मॉडल में फ्लिप कटर ने +1 व्यू भी कहा है. कई जगहों पे सिनेरियो या यूज केस व्यू भी उसको कहा जाता है. ठीक है. तो these terms can be used interchangeably. You can say the +1 view or the scenario view or the use case view. ठीक है. Then through this architecture we sort of try to summarize the UML diagrams we have learned. ठीक है ना. We have covered so many UML diagrams. We have covered or touched UML diagrams in abundance, like use case diagrams, like class diagrams. Through the lens of this architecture, ठीक है ना, we'll try to uh, make sense of those diagrams. ठीक है ना, कि which diagram is used in which layer of this architecture, or which diagram is used by which stakeholder. eh, ठीक है. or which diagram would be used by whom. ठीक है ना. By whom we mean by which stakeholder. ठीक है. कि यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम. तो कौन सा डायग्राम सिस्टम को किस पर्सपेक्टिव से विजुलाइज या मॉडल करने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है. ठीक है. और वो कौन इसको यूज करेगा एज अ टूल, उसको यूज कौन कर रहा होगा, किस स्टेक होल्डर के लिए वो एक टूल है. ठीक है. देन देन फाइनली विल कंक्लूड के 4+1 मॉडल जो है वो किस तरह इफेक्टिव आपके क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस को, आपके सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशंस को, डिजाइन को ज्यादा क्लियर या बेहतर, इफेक्टिव या एफिशिएंट किस तरह बना सकता है. एक किस तरह का आर्किटेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है. So we'll be starting our discussion on with a question like why so many UML diagrams. ठीक है. You might start wondering at some point in a course like or in a subject like this, why there are so many UML diagrams and why we need to learn sort of get familiar with the notation of so many UML packages or so many UML diagrams. ठीक है ना. जिस तरह के हमने पढ़े हुए हैं यूज केस, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स, कंपोनेंट्स डायग्राम. ठीक है ना. कोलैबोरेशन डायग्राम्स, द रोबस्टनेस एनालिसिस डायग्राम. ठीक है. ईसीबी मॉडल. तो व्हाई सो मेनी यूएमएल और डायग्राम्स और पैकेजेस. हम क्यों मतलब किसी सिस्टम को किसी एक डायग्राम, एक दो डायग्राम्स के लेंस से क्यों मॉडल नहीं कर सकते. Why do we need to sort of get familiar with this many diagrams or packages. ठीक है. So this view model basically essentially tries to answer this question. ठीक है. We have tried to establish through this TLC life cycle कि जब भी हमने किसी भी डायग्राम की बात की है जिस भी वीक में, we tried to make sense of it in the context of the software phases. ठीक है. एनालिसिस फेज है, डिजाइन फेज है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है. तो जैसे क्लास डायग्राम है तो वो किस फेज में कौन उसको यूज करेगा, तो इसका पर्पस क्या होगा, स्टेटेड पर्पस क्या है. ठीक है ना. वो किसको हेल्प आउट करेगा, सिस्टम को किस जाविये से देखने में हेल्प आउट करेगा. ठीक है ना. वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ मेक सेंस ऑफ these diagrams while discussing them. लेकिन now we will try to summarize those discussions basically through a lens of an architecture. ठीक है ना. From
a view of an architecture from multiple perspective basically. ठीक है. So from this question, ठीक है, this is the exact question the Power Plus One model helps us answer. ठीक है. So from this question now we'll move to a fact like हम एक व्यू मॉडल डिस्कस कर रहे हैं ना. We need to establish what a view is. ठीक है. For establishing what a view is, you you sort of already know that software system would have many perspectives. A system would have many perspectives, can be thought of from different perspective, from different point of views. One single software system can be thought of from different perspectives depending कि कौन stakeholder बात कर रहा है उसके बारे में. ठीक है ना. यूजर का perspective of the system would be very different from a developer's perspective of the system. डेवलपर को तो वो सिस्टम क्या कहते हैं फिजिकली कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है ना. यूजर को तो सिर्फ उसको यूज करना है. तो the views of the same system for these two distinct stakeholders will be very different. ठीक है. जिसको सिस्टम डिप्लॉय करना है किसी फिजिकल डिवाइस पे, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव सिस्टम फ्रॉम डेवलपर डिफरेंट होगा. ठीक है. जिसको एज ए क्लाइंट तो सिस्टम चाहिए, ठीक है, वो एंड यूजर लेट से भी नहीं है लेकिन उसको एज ए क्लाइंट चाहिए, सिस्टम बनवाना है, तो उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम कैन बी एंटायरली डिफरेंट. जिसको सिस्टम सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस अश्योर करना है. ठीक है ना. द टेस्टर का पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम कैन बी एंटायरली डिफरेंट. तो सिस्टम कैन हैव मल्टीपल व्यूज, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है ना. किस तरह वो बना है, कैसे बनेगा, कहाँ पे रन करेगा, डिप्लॉय कहाँ पे होगा, एंड यूजर को कैसे मिलेगा. ठीक है ना. लेट्स से कि एंड यूजर सोचेगा कि इसमें मेरे लिए सर्विसेज क्या है. ठीक है ना. व्हाट फीचर्स दिस सिस्टम ऑफर्स. ठीक है. तो अगर फॉर्मली वी कैन define an architectural view, a formal definition would be that an architectural view is a representation of the system from one perspective. ठीक है ना. From one single perspective. An architectural view is a representation of a system from one perspective or from a particular perspective. ठीक है. तो आपके पास फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव का हमारा क्या मतलब है. ठीक है ना. फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव मीन्स कि फ्रॉम वन स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ कंसर्न. ठीक है. तो हमारे पास अगर क्या कहते हैं, if we need to sort of, if you are asked to make a list of potential stakeholders of a system, ठीक है, तो हमारे पास एक रफ पहला ड्राफ्ट हम क्या बना सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स की. ठीक है. अ सिस्टम वुड बी यूज्ड बाय समवन, सिस्टम वुड बी डेवलप्ड बाय somebody. ठीक है ना. A team or individual needs to physically construct their system. Someone conceives that system. Someone proposes a design solution for the system. Someone deploys the system to servers basically or physical devices. ठीक है. Someone only uses that system. So these are क्या कहते हैं, different stakeholders. Those would be potentially uh, interested in very different or distinct perspectives of the system. ठीक है. तो our stakeholders, examples of stakeholders could be users, developers, architects, testers, DevOps engineers, or deployment engineers, system engineers. Different people care about, जैसे कि हम कह रहे हैं कि different aspects of the system. तो बिफोर समराइजिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम, अगर हम एक लेमैन एनालॉजी यूज करें, ठीक है, जस्ट टू रीइंफोर्स द कंसेप्ट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम वुड हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ठीक है. लेट्स से कि आपको एक कहते हैं घर बनाना, यू नीड टू बिल्ड एन हाउस. ठीक है. घर आपको बनाना है, आपको चाहिए, यू आर द क्लाइंट, आपको घर चाहिए. ठीक है. आपके पास एक जमीन है, आपको घर बनाना है उसको. ठीक है. देन आपको घर बनाने से पहले एक डिजाइन फाइनलाइज करना पड़ेगा. ठीक है. कि आपके घर में फॉर एग्जांपल कितने कमरे होंगे, अ, ठीक है, उसकी कितने स्क्वायर फीट हर कमरे की साइज होगी, ओवरऑल घर के कितने साइज होगा, किचन कहाँ पे होगा. ठीक है ना. और क्या कहते हैं, मतलब यू नीड टू कम अप विद द डिजाइन. ठीक है ना. कि आपको घर किस तरह का चाहिए. ठीक है. अगर आप वो खुद डिसाइड करते हैं या आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल का क्या को कंसल्ट करेंगे, लाइक एन आर्किटेक्ट और समथिंग लाइक someone like them with that certain skill set.
ठीक है। तो मतलब कंसीव एक अपनी रिक्वायरमेंट्स पुट करेंगे और आप एक क्या कहते हैं, एक सोल्यूशन विद हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, और आप इंडिविजुअली खुद एक डिजाइन सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। कि पहले एक एक सिर्फ पे क्या कहते हैं रॉ रॉ थॉट थॉट था कि मुझे घर बनवाना है। देन आपने उस रॉ थॉट को, उस कंसेप्शन को, आपको क्या कहते हैं, उस कंसीव्ड एक उसको अ, एक डिजाइन सॉल्यूशन में ट्रांसलेट किया कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उसका ये एग्जैक्ट डिजाइन है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स तमाम उसको कंसीडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन इट ईटीसी, ये मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ घर है जो मुझे चाहिए, ये विद एग्जैक्ट दीज रिक्वायरमेंट्स मुझे इस तरह का घर बनवाना है। ठीक है। देन somebody needs to physically build this house, तो आप रेलेवेंट कंस्ट्रक्टर मतलब रेलेवेंट स्किल सेट के लोग हायर करेंगे जो आपको घर फिजिकली बना के दे। ठीक है। तो जिसकी मदद से आपने डिजाइन बनवाया था, या जिससे आपने अपने घर का डिजाइन बनवाया था, उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द हाउस वुड बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जिस जिसने वो घर फिजिकली कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट ये नहीं सोच रहा कि आप क्या कहते हैं डिजाइन लेवल पे, ठीक है, जब वो एक डिजाइन सॉल्यूशन प्रपोज कर रहा हो, उस वक्त वो शायद इस ये कंसीडर नहीं कर रहा होगा कि आप क्या कहते हैं दरवाजे क्या कहते हैं लकड़ी के लगाओगे, या गिलास के लगाओगे, या स्टील के लगाओगे, किस मटेरियल के लगाओगे। आप घर में इंटरनली मतलब रॉ मटेरियल घर बनाने के लिए क्या यूज करोगे। ठीक है। देन आपने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं एक डिजाइन एक को एक कंसीव्ड ऑब्जेक्ट को एक डिजाइन सॉल्यूशन में ट्रांसलेट किया। ठीक है ना, विद हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल। ठीक है। देन आपने उस डिजाइन सॉल्यूशन को एक फिजिकल रियलिटी में ट्रांसलेट किया। ठीक है ना, एक घर बनवाया, फिजिकल घर कंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है। देन आपको क्या कहते हैं उस घर में दरवाजे, खिड़कियां, ये चीजें इंस्टॉल करनी है। ठीक है ना, आप रेलेवेंट लोगों का, कारपेंटर वगैरह की मदद से ये काम करवा दोगे। ठीक है। तो देयर पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड नॉट बी सेम एज द कंस्ट्रक्टर वर्कर्स। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वुड नॉट बी सेम एज द आर्किटेक्ट, एज द आर्किटेक्ट जिसने घर का मॉडल डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। वुड नॉट बी सेम एज यू जिसको ये घर चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करनी है, तो यू आर इलेक्ट्रिशियंस, जो जिनका ओनली कंसर्न और पर्सपेक्टिव और व्यू ऑफ द सिस्टम क्या होगा, वो घर का व्यू फॉर फॉर इलेक्ट्रिशियन क्या होगा, कि इंटरनली दीवारों दीवारों में लेट से इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहाँ ट्रेवल करेंगी। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे होंगी। ठीक है ना, आपके पास सॉकेट्स कहाँ पे होंगे, बल्ब्स कहाँ पे लगेंगे, फैंस एंड ऑल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, एसी वगैरह कहाँ पे लगेंगे। ठीक है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव और व्यू ऑफ द सिस्टम होगा, वो फिर इंटायरली डिफरेंट होगा जिन कंस्ट्रक्शन वर्कर से। ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, फिर आपको क्या कहते हैं घर पे पेंट करना है, तो आ, आप क्या कहते हैं आपको इलेक्ट्रिशियन पेंट करके नहीं देंगे, या जिन्होंने घर कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको पेंट करके नहीं देंगे। पेंट के लिए डेडिकेटेड आपको टीम हायर करनी पड़ेगी विद देट सर्टेन स्किल सेट। ठीक है। तो उनका जो है पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, उनका व्यू ऑफ योर हाउस वुड बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फ्रॉम द आर्किटेक्ट जिसने आपको घर का मॉडल बना के दिया था इनिशियली। ठीक है। फ्रॉम यू जिसको वो घर चाहिए, लेट से फ्रॉम द इलेक्ट्रिशियंस। ठीक है। आई एम पॉजिंग दिस फॉर अ मिनट, लेट मी कम बैक। सो मूविंग ऑन, ठीक है, हम एक हाउस एनालॉजी, एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी, एक लेमैन एनालॉजी यूज कर रहे थे टू मेक सेंस ऑफ व्हाई अस वन सिंगल एंटिटी वुड हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव लाइक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर सिस्टम, व्हाई वुड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम नीड मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। जैसे कि हम हाउस एनालॉजी में बात कर रहे थे कि डिफरेंट टीम्स वुड वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दे वुड हैव एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है। जिस क्लाइंट को घर चाहिए उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम अलग होगा, लेकिन जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर
उसको वो घर फिजिकली कंस्ट्रक्ट करके देंगे, उनका व्यू ऑफ द सिस्टम वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एन आर्किटेक्ट जो उस घर का सिर्फ मॉडल बनाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन जिनको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करके देनी है, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से अ पेंटर जिसको घर 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 को पेंट करके देना है। ठीक है। घर में प्लम्बिंग जिसको करनी है, तो प्लम्बिंग का काम जिसको करना है, जिसका उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जिसको इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करनी है घर पे। ठीक है। इसी तरह इसी सेम एनालॉजी को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है। समवन कंसीव्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, ठीक है ना, कम अप विद द रिक्वायरमेंट जिसको हम क्लाइंट कहेंगे। ठीक है। कि देन दे वुड शी वुड हायर दे वुड हायर अ टीम कि भाई ये हम क्या कहते हैं सिस्टम मुझे चाहिए। ठीक है। देन द टीम, उस टीम में, ठीक है, मल्टीपल लोग मल्टीपल काम करेंगे पहले। ठीक है ना, लेट्स से समवन वुड डिजाइन अ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। ठीक है। उस उन रॉ ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट्स को रियल फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करेगा। फिर उन रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, उस सिस्टम डोमेन के बेस पे जो क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट किया है या प्रपोज किया है, उसके बेस पे क्या कहते हैं, एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन डिजाइन करेगा कि ये सिस्टम इट्स इक्वलेंट टू द आर्किटेक्ट जो आपको मॉडल बना के देगा। ठीक है। देन somebody needs to construct this software like the construction work in an house analogy। ठीक है। somebody in their team would need to physically construct, or somebody or some team, let's say a group of people would need to construct that system। इनको हम डेवलपर और प्रोग्रामर्स कह सकते हैं। ठीक है। कि वो आपको क्या कहते हैं, वो डिजाइन सॉल्यूशन पे एक कंप्लीट क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देंगे, फिजिकली कंस्ट्रक्ट करके देंगे। ठीक है। then somebody or some group needs to test their system for performance, and testers would come into the picture। ठीक है। जो घर आपको क्या कहते हैं घर क्या कह रहा हूँ, सॉरी, वो आपको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करेंगे फॉर परफॉर्मेंस, फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है। देन अ ग्रुप और somebody or some group needs to uh, deploy that system on physical servers। ठीक है ना, provide that system to end users। Okay? So that's why software system would need multiple views. There are multiple stakeholders involved in different phases of that system. ठीक है। All these views can be implemented currently basis to speed up the process of development basically। ठीक है। लेकिन a system would have multiple perspective डिपेंडिंग कि आप किस लेंस से उस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एज अ कौन उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप एज अ डेवलपर बात कर रहे हैं, एज अ क्लाइंट बात कर रहे हैं, एज एन एंड यूजर से बात कर रहे हैं। ठीक है। यूजर वुड ओनली बी इंटरेस्टेड कि सिस्टम क्या करके दे सकता है मुझे, इसको यूज करते हुए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अपने क्या क्या गोल अचीव कर सकता हूँ इसको यूज करते हुए। इजी पैसा का ऐप यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ एज एन एंड यूजर, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। लेकिन जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप की, उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम इंटायरली डिफरेंट है ना मुझसे। ठीक है। जिस डेवलपर ने उसको डेवलप किया है, जिस टेस्टर ने उस कंप्लीट एप्लीकेशन की टेस्टिंग की है, या जिन्होंने उसको क्या कहते हैं फिजिकल डिवाइसेस पे डिप्लॉय किया हुआ है, एंड यूजर्स तक पहुंचाया है, डिप्लॉयमेंट या सिस्टम इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड बी इंटायरली डिफरेंट। ठीक है। तो वन सिस्टम के मल्टीपल व्यूज और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डिपेंडिंग के कौन उस पे बात कर रहा है, कि किस किस लेंस पे से सॉफ्टवेयर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट समराइज कि डिफरेंट पीपल केयर अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना। अ यूजर वुड केयर अबाउट कि सिस्टम में क्या है, क्या फीचर्स है, मेरे लिए क्या है। ठीक है। क्या इसमें सर्विसेज हैं और मैं किस तरह इसको यूज करूँ। ठीक है। डेवलपर वुड बी इंटरेस्टेड इन कि इसकी क्लास, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है तो इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्लासेस बनेंगी। ठीक है ना, मैं एक प्रोग्राम इसको कैसे करूँगा। ठीक है। डिप्लॉयमेंट इंजीनियर वुड बी इंटरेस्टेड इन कि मैं इसको कहाँ पे किन इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय करना है, ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसी होगी। ठीक है। लेट्स से कि आपने क्या कहते हैं एक वेब एप्लीकेशन बना दिया, एक वेबसाइट डेवलप की है। ठीक है। एक वेबसाइट है। ठीक है। आपका वेबसाइट एंड यूजर कैसे यूज करेगा, दे विल प्रोबेबली यूज अ ब्राउजर, एक पर्सनल कंप्यूटर यूज करेंगे, उस पर ब्राउजर खोलेंगे, यूआरएल टाइप करेंगे।
ठीक है। तो दैट यूआरएल वुड बी ट्रांसलेटेड बाय डीएनएस सर्वर, जो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे। देन वो आईपी एड्रेस ब्राउजर पर वेब सर्वर को भेजेगा, वेब सर्वर उसको रिक्वेस्टेड वेब पेजेस भेज देगा। उस वेबसाइट पे रहते हुए उसको पेज चेंज करना हो तो किसी सर्टेन यूआई एलिमेंट से इंटरेक्ट करेगा और एक रिक्वेस्ट वापस वेब आपके ब्राउजर से सर्वर के पास जाएगा। सर्वर वापस उसको वो रिक्वेस्टेड पेजेस भेज देगा। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, कैसे होगा। ठीक है ना, किन फिजिकल डिवाइसेस पे जो वो सर्वर पे अगर वो पेजेस पड़े हुए हैं तो किस एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, व्हाट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वुड लुक लाइक। ठीक है ना, somebody needs to decide ना, somebody needs to implement that। ठीक है ना, तो उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड बी डिफरेंट, जिसने सिर्फ वो फिजिकली सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड लिखे हैं जिसको हम डेवलपर कह रहे हैं। ठीक है। एक CI/CD जिसको मेक श्योर करना है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसको हम CI/CD इंजीनियर कह रहे हैं। ठीक है ना, या डेवऑप्स इंजीनियर कह रहे हैं। तो उसका पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ यूजर, फ्रॉम अ डेवलपर, फ्रॉम अ डिजाइनर। ठीक है। तो आप इन व्यूज को, ठीक है, क्लासिफाई भी कर सकते हैं, इन ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई किसी व्यू को स्ट्रक्चरल व्यू कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो व्यू क्या डिस्क्राइब कर रहा है। अगर एक एक पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को देखने का एक तरीका ये है कि आप उसके क्या कहते हैं, सिर्फ स्टैटिक स्ट्रक्चर स्कीमा में इंटरेस्टेड है। इफ यू आर लुकिंग सिस्टम फ्रॉम एन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन स्टैटिक पॉइंट, तो दैट व्यू माइट प्रोबेबली बी इन स्ट्रक्चरल व्यू। अगर आप सिस्टम की को एक बिहेवियरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि हाउ वुड दे एग्जीक्यूट सर्टेन थिंग्स, एक यूजर इंटरेक्शन के बेस पे हाउ वुड द सिस्टम बिहेव इंटरनली। ठीक है ना, तो वो उसको आप एक डायनेमिक व्यू कह सकते हैं। किन फिजिकल डिवाइसेस पे दैट सिस्टम वुड बी इंस्टॉल्ड और डिप्लॉयड। अगर इस पर्सपेक्टिव से सिस्टम को देख रहे हैं तो दैट कुड बी अ फिजिकल व्यू। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ यूज कर सकते हो इन फिजिकल, डायनामिक एंड स्ट्रक्चरल व्यूज। ठीक है, डिपेंडिंग के उस व्यू में आप बात क्या कर रहे हो, सिस्टम को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। सिस्टम को सिर्फ स्टैटिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, सिर्फ एज एन स्कीमा और एज एन स्टैटिक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो दैट वुड बी एन स्ट्रक्चरल व्यू। अदरवाइज अगर आप उसको क्या कहते हैं, एक बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो दैट वुड बी एन डायनेमिक व्यू। अगर आप डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि कहाँ पे इन फिजिकल रियलिटी द सिस्टम वुड इवेंचुअली लिव, तो क्या कहते हैं उसको आप फिजिकल व्यू कह सकते हो। ठीक है ना, क्लासिफाई कर सकते हो।